Praise the Lord and welcome once again. Praise the Lord और एक बार फिर से आप सबों का इस सभा में स्वागत है। Good to be back again with you all. आप सबों के साथ इस रीति से वापस आना आनंद की बात है। Thank the Lord for every good thing He has done for us. प्रभु का हम धन्यवाद देते हर एक भलाइयों के लिए जो उसने हमारे प्रति किया है। Count your blessings. कहता है अपनी आशीषों को गिनो, Name them one by one. एक एक कर नाम बनाम, Surprise you what the Lord has done. और हमें आश्चर्य होगा कि परमेश्वर ने कितनी भलाई हमारे संग किया है। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Shall we start with that chorus? क्यों ना उस कोरस से गाकर हम शुरू करेंगे। Love is the flag on the banner of my heart. झंडा है प्रेम का मेरे दिल में लहराता। Love is the flag on the castle of my heart, on the castle of my heart, on the castle of my heart. Love is the flag on the castle of my heart, and the King is in residence here. Let it fly in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. Let it fly in the sky, let the whole world know that the King is in residence here. God is the flag on the castle of my heart, on the castle of my heart, on the castle of my heart. Love is the flag on the castle of my heart, and the King is in residence here. Let it fly in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. Let it fly in the sky, let the whole world know that the King is in residence here. Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। This is also in Hindi. ये गीत हिंदी में भी है। Shall we sing it in Hindi now? हिंदी में अभी से गाएंगे। झंडा है प्रेम का। झंडा है प्रेम का मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता। झंडा है प्रेम का मेरे दिल से लहराता। राजा यीशु मेरे दिल में है, उससे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने, सारा जग जाने, सारा जग जाने। उससे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने। राजा यीशु मेरे दिल में है। प्रेम का मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता। झंडा है प्रेम का मेरे दिल से लहराता। राजा यीशु मेरे दिल में है, उससे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने, सारा जग जाने, सारा जग जाने। उससे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने। राजा यीशु मेरे दिल में है। Hallelujah. प्रभु मुझको एक साज बना, साज स्तुति का। मैं अपने हाथों को उठाता, प्रभु मुझको एक साज बना, साज स्तुति का। मैं अपने हाथों को उठाता, प्रभु मुझको एक गीत बना, एक गीत स्तुति का। मैं अपने हाथों को उठाता,
I lift up my hands in your name. Lord, make me a love song for Jesus. I lift up my hands in your name. Lord, make me a love song for Jesus. I lift up my hands in your name. Lift up your holy hands, worship me one more time. life, Lord, be glorified, be glorified in my life, Lord,
Lord, we want to say, प्रभु हम कहना चाहते हैं we love you. कि बिना तेरे We want to say, we love you, Lord. प्रभु हम आज सुबह तुझसे ये कहना चाहते कि हम तुझसे प्रेम करते हैं, Even though sometimes our love has been weak and frail, यद्यपि कई बार हमारा प्रेम कमजोर और दुर्बल होता है, yet, Lord, we know this, तो भी प्रभु इस बात को हम जानते हैं that you loved us first. कि तूने हमसे पहले प्यार किया है। Give us grace to love you more. हमें और अनुग्रह दे दे कि हम तुझसे और बढ़कर प्रेम कर सकें। Yes, Master. हाँ स्वामी, This is our prayer this morning. यही हमारी आज सुबह तुझसे प्रार्थना है। Draw us and we will come nearer to you. हमें अपने करीब ले आ, हम तेरे और पास आ जाएंगे। Fold us to your bosom. हमें अपने सीने से लगा ले प्रभु, Feel the throb of your heart. ताकि तेरे दिल की धड़कन हम समझ पाएं। Forgive us our sins and iniquities. हमारे पापों को और हमारे अधर्मों को माफ कर दे प्रभु। Wash us in the blood of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के खून में हमें धो दे, Make us worthy हमें इस योग्य बना दे to stand before you. कि तेरे सामने हम खड़े हो पाएं। Bless your people. अपने लोगों को तू आशीष देना, Bless your word to our hearts. अपने वचन को हमारे लिए आशीषमय कर। Give us utterance to speak your word. तेरे कलाम को बोलने की शक्ति दे Give us listening ears. और हमें सुनने वाले कान दे। Bless us all. हम सबों को आशीष दे, In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते। Amen. आमेन। Thank the Lord for this wonderful morning. परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं सुंदर सुबह के लिए। Welcome once again, and let's join ourselves together and worship God together. आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर की उपासना करें। God has been very good to us and gracious to us, परमेश्वर हमारे प्रति बहुत ही अनुग्रहकारी और दयालु रहा है प्रियो, that He has given us one more opportunity to come together कि उसने ऐसा ही एक बार और अवसर दिया कि हम इस प्रकार से मिल सकें and worship God together. और मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। We are so grateful to God and thankful to Him, हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हैं, कृतज्ञ हैं, because last week Brother Ajit met with an accident. क्योंकि बीते सप्ताह एक दुर्घटना से मैं गुजरा। God saved him from any serious complications. परमेश्वर ने किसी भी गंभीर चोट से मुझको बचाया है। He fractured his hand और हाथ में फ्रैक्चर है and he got operated on it. और उस पे ऑपरेशन भी किया गया है। Thank God he is with us. प्रभु का हम धन्यवाद देते कि हम साथ में आज हो सके हैं। So we covered your prayers आपकी प्रार्थनाओं की हमें आवश्यकता है। and to not only pray for God to bless us, केवल इसलिए प्रार्थना नहीं कि परमेश्वर हमें आशीष दे, but to keep us under His protection. परंतु प्रार्थना इसलिए भी कि परमेश्वर अपनी सुरक्षा के नीचे हमें संभाल कर रखे। Not only that, न केवल इतना प्रियो, keep us faithful to Him till the end of time. इसलिए भी कि हम समय के अंत तक उसके प्रति विश्वास योग्य बने रह सके। Amen. आमेन। God has brought us to a new year. परमेश्वर ने हम सभी को एक नए साल में लाकर प्रवेश कराया है। Last year there was so many challenges. बीता जो साल गुजरा है वो बहुत ही चुनौतियों से भरा रहा है, Amazing grace लेकिन अद्भुत अनुग्रह that has brought us through all this. जिसने हमें इन सब से निकाल कर यहाँ तक पहुँचाया। Gave us one more opportunity to serve God. एक और अवसर दिया उसकी सेवा करने का। There is nothing better इससे बेहतर कोई बात नहीं। to serve the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की सेवा से बड़ी कोई बात नहीं। Greatest thing in all my life मेरे जीवन में सबसे महान कोई बात यदि है is to love God and to serve Him. वो ये कि मैं उससे प्रेम कर सकूं, उसकी सेवा कर सकूं। What can be better? इससे बेहतर क्या हो सकता One है? day in the house of the Lord.
प्रभु के घर में एक दिन बिताना is better than 1,000 outside. वो तो बाहर बिताए हुए हजारों दिनों से भी क्या ही बेहतर है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Shall we turn our Bibles to the book of Psalms, आइए आज सुबह अपनी बाइबलों में हम खोल लेंगे भजन संहिता की किताब Psalm 34. और उसका 34 अध्याय। It's a wonderful psalm. We've all been blessed by it. और ये बहुत ही खूबसूरत भजन है जिससे हम सभी लोग आशीष को पाते हैं। Just a few verses here and there we'll read. कुछ आयतों को इसमें हम अलग अलग भागों में से पढ़ेंगे। It says, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. वो कहता, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। Oh, magnify the Lord with me. Let us exalt his name together. मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। I sought the Lord and he heard me and delivered me from all my fears. मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। They looked unto him and were lightened, and their faces were not ashamed. जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। This poor man cried, and the Lord heard him, saved him out of all his troubles. इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। The angel of the Lord encampeth round about them that fear him and delivereth them. यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। O taste and see, the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in him. परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। Amen. आमेन। This whole psalm is a psalm of blessing. ये पूरा भजन एक आशीषों का भजन है। Actually, this is a psalm of deliverance. वास्तव में देखा जाए तो एक छुटकारे का भजन है। If you remember David, यदि आप स्मरण करेंगे दाऊद राजा को, after his anointing उसके अभिषेक होने के बाद and after God exalted him, और परमेश्वर उसको महिमा देने के बाद में, after he had killed Goliath, गोलियत को मारकर गिराने के बाद में, everybody knew who David was. हर एक मनुष्य पहचान गया कि दाऊद नाम का शख्स कौन है। But his life was full of troubles. लेकिन देखे दाऊद की जिंदगी बहुत संकटों से भरी हुई थी। At one time Saul was seeking to kill him. और एक ऐसा भी समय आया जब शाऊल राजा दाऊद की हत्या करने के लिए उसका पीछा करने लगा। And he's running. और दाऊद अपनी जान बचा के भाग रहा। Not once, not twice. एक बार नहीं, दो बार नहीं, Many times. बहुत सी बार ऐसा हुआ। And it is so sad to say और ये बात क्या ही दुखद है कहना that he is seeking shelter in enemy's territory. कि दाऊद को अपने ही शत्रुओं के क्षेत्र में जाकर शरण लेना पड़ा। One time he ran away. एक बार की बात है कि वो जब भाग कर गया, He ran into Philistine territory. वो फिलिस्तियों के क्षेत्र में चला गया। That's the time he's writing this psalm. और वही समय था जब दाऊद जो है इस भजन को लिख रहा था। If you know a little bit of background of what had happened, यदि आपको कुछ मालूम हो उस पृष्ठभूमि के बारे में जो ठीक इसके पहले हुआ, the Philistines they never liked the Israelites. फिलिस्ती लोग कभी भी इजरायली लोगों को पसंद नहीं करते थे। But now these own people are seeking to kill David. लेकिन अब यहाँ पर दाऊद के स्वयं के लोग उसकी हत्या करने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। One time they were saying that Saul has killed 1,000, David has killed 10,000. एक समय था जब यह इजरायली लोग पुकार कर बोल रहे थे, शाऊल ने हजारों को मारा और दाऊद ने 10,000 को मारा। And we read that David found favor with all men. और हम पाते हैं कि दाऊद हर एक मनुष्य के दृष्टि में अनुग्रह पाया। He walked very uprightly. और बहुत ही खरा जीवन दाऊद जी रहा था। He was well respected. और उसका बड़ा ही इज्जत था। Suddenly tables turned. लेकिन एकाएक परिस्थिति बदल गई। People are more prone to salute the chair than the man. लोगों में एक स्वभाव होता है जो पद में है उसको वो ज्यादा सम्मान करेंगे बनस्बत जो नहीं है उससे।
The person doesn't mean anything to some of them. और कई लोगों के लिए वो व्यक्ति कोई मायने नहीं रखता, Is the chair they salute. परंतु वो सलामी करते हैं उस कुर्सी को। How far man has fallen. मनुष्य आज कितना नीचे गिर गया Same है। thing is everywhere. हर एक चीज आज दुनिया में आप हर जगह देखते हैं। Sometimes it is creeping into Christian organizations too. और कभी कभी यही दुनिया की चीज आप देखते हैं मसीही संगठनों के अंदर भी धीरे धीरे दिखने मिल जाती You're है। losing the value of the man of God. परमेश्वर के जन का मूल्य लोग खो देते हैं। And after he's gone, they said he was a good man. और जब वो इस दुनिया से एक दिन कूच करके चले जाता है, तब सभी लोग बोलते हैं कि वो बहुत ही भला मनुष्य था। Friends, this is the time प्रिय दोस्तों, यही समय है to realize and not to break our relationship. इस बात को एहसास करने का और अपने रिश्ते को प्रभु के साथ नहीं तोड़ने का। Imagine कल्पना करके देखें, David is seeking refuge in Philistine territory. कि दाऊद को जाकर अपने ही शत्रु फिलिस्तियों के क्षेत्र में शरण लेना पड़ा। He wants to escape from the hands of Saul. वो तो शाऊल के हाथ से अपनी जान बचाना चाहता है। So he goes to Gath, तो वो गत नाम के स्थान में जाता, and king is ruling there. His name is Achish. और वहां पर जो राजा उस समय राज्य कर रहा था उसका नाम था आकीश, Or they called him Abimelech. और अबीमेलेक भी वो लोग उसको बोलते थे। Some people say that Achish was a title given. और कुछ लोग कहते आकीश उसको एक पदवी दिया गया था, His name is Abimelech. और उसका नाम मूलतः अबीमेलेक था, ऐसे भी लोग कहते हैं। So the servants of Abimelech bring David before Achish. तो उसका दास लोग जाकर दाऊद को लेकर आकर आकीश के सामने खड़ा करते हैं, And some of them recognize him. और उनमें से कुछ उसको पहचान लेते हैं And they said, "Is not this David?" और कहते हैं क्या ये दाऊद वही दाऊद नहीं है About whom they sang. जिसके बारे में इजरायलियों ने ललकारा था Saul has killed 1,000 and David has killed 10,000. कि शाऊल ने हजारों को मारा तो दाऊद ने 10,000 को मारा। Mind you, Philistines knew that song ध्यान रहे कि फिलिस्तियों को भी याद था वो घटना, when they sang praises to David. जब वे लोग दाऊद के लिए जय जयकार की ललकार कर रहे थे। And the scripture says, और पवित्र शास्त्र कहती है David was extremely afraid. दाऊद ये बात सुनते ही राजा के सामने डर गया। Don't think that he was never afraid. ये मत सोचे कभी भी कि दाऊद डरता नहीं था, He was so afraid वो तो इतना डरता था that David changed his behavior. कि डर के मारे दाऊद ने राजा के सामने अजीबोगरीब व्यवहार करने लगा। And the scripture says, वचन में लिखा है, and David laid up these words in his heart. दाऊद इन बातों को अपने मन में ध्यान में रखा, That you will read in 1 Samuel 21st chapter 12th verse. जो आप पहले शमूएल 12 और उसके 6 आयत में पढ़ते हैं। And was sore afraid of Achish the king of Gath. और दाऊद गत के राजा आकीश से के सामने इतना भयभीत हो गया That he changed his behavior कि उसने अपने व्यवहार को बदल डाला before them. उन सारे खड़े लोगों के And सामने, framed himself as a madman. और अपने आप को एक पागल आदमी के समान वो नाटक करने लगा, Began to scribble on the door. और दरवाजे में जैसे खरोचने लगा, And made his spittle to fall on his beard. और मुंह से वो लार टपकाने लगा जो उसकी दाढ़ियों में बह रही थी। And Achish said to his servants, तब आकीश ने ये सब देखकर अपने उन दासों से कहा, Lo, you see this man is mad. अरे जब तुम देखते हो ये आदमी तो पागल है, Wherefore have you brought him to me? तुमने क्यों इस पागल आदमी को मेरे सामने लेकर आए? Have I need of a madman क्या मुझे पागल आदमियों की कमी है that you have brought this fellow before me? कि तुमने ये आदमी को भी मेरे सामने ले आए? And he threw him out of his presence. और उसने अपनी उपस्थिति से दाऊद को निकाल दिया। This fellow shall not come into my house, he said. और कहा ये व्यक्ति मेरे घर में प्रवेश नहीं करने पाएगा। David escaped दाऊद बच गया and he ran. और वहां से भागा, And he came to a cave called Adullam. और एक गुफा में पहुंचा जिसका नाम अदोनम था। A cave एक गुफा of refuge. शरण की गुफा। And there's a place he might have written this psalm.
और बहुत संभावना है कि उसी गुफा में बैठकर दाऊद ने इस 34 भजन को लिखा है, Psalm of deliverance. छुटकारे का भजन। And he begins with praise. और वो स्तुति करता है, स्तुति से इसका आरंभ करता है। What God has done for him. परमेश्वर यहोवा ने उसके लिए क्या किया है। You see, God is always in the business of delivering people. देखिए, परमेश्वर हमेशा से ही लोगों के छुटकारा देने के कार्य में लगा रहा है। You read of in the Paul's writing, he writes in Romans, पौलुस रोमी की पत्री में लिखते हुए बोलता है, who shall deliver me? कौन मुझे छुटकारा देगा। O wretched man that I am, who shall deliver me from the मैं bondage कैसा of this death? अभागा मनुष्य हूँ, मृत्यु की इस देह से कौन मुझे छुटकारा देगा। Romans 7 chapter रोमी और उसका 7वां अध्याय में वो कहता है, 24 and 25 says, और उसके 24 और 25 में कहता है, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? कहता है, मैं कैसा भागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। You see, the whole book in the Old Testament is full of prayers. देखिए, पुराना नियम की सारी किताबें प्रार्थनाओं से भरी हुई हैं। Psalms are full of prayers. भजन संहिता प्रार्थनाओं से भरा है। And most of the prayers are prayers for deliverance. और अधिकतर प्रार्थनाएं जो वहां पर लिखी है, छुटकारे की प्रार्थनाएं लिखी हैं। Man is in such a wretched state. आज मनुष्य ऐसे अभागे परिस्थिति में है, And knowingly or unknowingly, जानबूझकर या अनजाने में things come upon him which he seeks deliverance from. ऐसी परिस्थितियां उसके जीवन के ऊपर आती है जिससे वो छुटकारा पाना चाहता है। There are many prayers mentioned in the scripture. बहुत सी प्रार्थनाएं पवित्र शास्त्र में लिखी हैं। Deliverance from their enemies, they are seeking for, praying to God. और ऐसे लोगों के से छुटकारा, शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए लोग प्रार्थना They कर are रहे हैं। praying to God for deliverance from bondage. लोग अपने बंधुआई से आजादी पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। And sometimes they pray to God and say, God deliver us from wicked men. और कई जगह वो प्रार्थना करके बोलते, हमें दुष्टों से हे यहोवा बचा ले। We deliver us from those who have come to destroy us. ऐसों से बचा ले जो हमारे नाश करने के लिए आ रहे हैं। Deliver us from deceivers, O God. हमें धोखा देने वाले लोगों से बचा ले प्रभु। Deliver us from bad situations and circumstances. हमें बुरी परिस्थितियों से और ऐसी स्थितियों से बचा ले। Deliver us from sin, हमें पाप से बचा ले, from demonic forces, दुष्टात्माओं की ताकतों से, from sickness. बीमारियों से। Lord, deliver us from fear. परमेश्वर भय से हमें बचा ले। These are the prayers of God's people. ये प्रभु के लोगों की प्रार्थनाएं रही हैं। Oh, the devil has always been wanting to bring people into bondage. और शैतान हमेशा से ही ये प्रयास करता रहा है कि प्रभु के लोगों के ऊपर में बंधुआई आए। We know the days of slavery. हम जानते हैं और सुने हैं गुलामी के उन इतिहास के बारे में, How man has oppressed man कि कैसे मनुष्य ही मनुष्य को सताता था and oppressed him to the place where he thought of ending his life. और ऐसे इतना सताता था कि मनुष्य अपने जीवन को ही अंत करने के बारे में सोच ले। And they sought for deliverance. और ऐसे लोग छुटकारे की प्रार्थना कराते थे। Many men fought for deliverance. बहुत से लोग छुटकारे के लिए उन्होंने प्रार्थना की। Many politicians have fought for deliverance too. बहुत से राजनेताओं ने भी आजादी के लिए, छुटकारे के लिए संघर्ष किया है, So that man will have equality. ताकि मनुष्यों के बीच में वहां पर समानता आए, Live in freedom. लोग आजादी से जी सकें। So the prayer always goes from a man's heart. इसलिए याद रखें, प्रार्थना हमेशा ही मनुष्य के हृदय से निकलती आई है। And even Jesus taught them to pray and said, और यीशु मसीह ने भी उनको प्रार्थना ऐसे करने सिखाया। when you pray, pray like this. कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसा कहो, Deliver us from evil. हमें बुराई से बचा। Hallelujah. Hallelujah. Deliver us from evil. हमें बुराई से Lead us बचा, not into temptation. हमें परीक्षा में ना ला। Hallelujah. हालेलुया। Man is seeking for deliverance. मनुष्य छुटकारे की राह देख रहा है। Paul, when he writes about this, पौलुस इसके बारे में लिखता है, he's saying, who shall deliver me from this body of death? वो कहता है कि इस मृत्यु की देह से मुझे
कौन छुड़ाएगा? It seems like death is hanging on this living body. ऐसा लगता है कि मृत्यु आकर इस जीवित शरीर के साथ में चिपक गई है। And man wants to deliver himself. और मनुष्य अपने आप को उससे अलग करना चाहता है। Sometimes our habits, कभी कभी कोई आदतें, sometimes certain things that have taken hold of our mind. कभी कभी कोई ऐसी चीज जो हमारे मन को बांध रखी है, And we seek for deliverance. और हम उस चीज से छुटकारा चाहते हैं। And we call on God and say, और परमेश्वर को पुकार के बोलते, oh wretched that man that I am. ओ प्रभु मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, Who will deliver me? कौन मुझको छुड़ाएगा? Amen. Amen. Then he goes on to he gets the answer in the next verse. तब अगली आयत में उसको जैसा कि जवाब मिल गया हो, Through Jesus Christ my वो Lord, कहता हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा I have found deliverance. ओ मैंने छुटकारे को पाया है। Listen my friends, ओ प्रिय मित्रों सुने, God has the power to deliver us from sin. परमेश्वर के पास में सामर्थ्य में पाप से छुटकारा देने के That लिए, is why he taught us to pray like इसलिए तो this. उसने ऐसे प्रार्थना हमें करना सिखाया, Deliver us from evil. हमें बुराई से बचा। And sin is evil. और पाप जो कि बुराई है, You know David, when he fell in sin, आप जानते एक समय जब दाऊद राजा पाप में गिरा, he prayed this prayer in Psalm 51. उसने भजन संहिता और उसकी 51 अध्याय में इस प्रार्थना को किया। 14th verse he says, और उसके 14 आयत में वो बोलता है, 7th verse he is praying to God. और 7वीं आयत में परमेश्वर से प्रार्थना करके बोलता He is saying, है, Lord, purge me with hyssop. वो कहता परमेश्वर जूफे से मुझे धो दे, I shall be clean. और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। Wash me. मुझको धो दे, I shall be whiter than snow. मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। This is his cry from his heart. ये उसके हृदय के अंदर की पुकार है। What a mess I have made of my life. प्रभु मैंने अपनी जिंदगी को क्या ही खराब कर रखा I है। have lost the joy of salvation. मैंने उद्धार के उस आनंद को खो दिया A है। momentary pleasure for sin ओ पाप में क्षणिक आनंद के कारण has taken away my joy. उस चीज ने मेरे उद्धार के आनंद को हटा दिया। The guilt of my sin troubles me. मेरे पाप की वो ग्लानि मुझको सताती है। So in 14th verse he says, 14 आयत में बोलता है, deliver me from blood guiltiness, O God. हे परमेश्वर मुझको उस अपराध से, हत्या के अपराध से छुड़ा ले। Thou God of my salvation, ओ मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धार करता परमेश्वर, and my tongue shall sing aloud of thy righteousness. मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने तब पाऊंगा। See the wretchedness of his soul. देखिए उसके प्राण का भागापन, That's what sin does. यही पाप करता लोगों के Sin will साथ। rob us of our joy, ओ पाप लोगों के आनंद से उनको वंचित कर देता rob है। us of our relationship with God, हमारा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ है उससे हमें वंचित कर देता rob us है। of all God's blessings. परमेश्वर की तमाम बरकतों से हमें वंचित कर देता है। You don't need to stay there. हमें वहां पर बने रहने की जरूरत नहीं। There is deliverance in the blood of Jesus Christ. वहां पर यीशु मसीह के लहू में छुटकारा है। Whosoever shall call on the name of the Lord जो कोई भी आज के दिन प्रभु के नाम को पुकारेगा shall be delivered. वो जरूर छुटकारा पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। So David, in his Psalms, he expresses his heart. दाऊद अपने हृदय में अपने उस भजन को बोलता है। You know, God wants to deliver us from our enemies. आप जानते परमेश्वर हमारे शत्रु से हमें छुड़ाना चाहता है। And Bible says, only with your eyes you shall see and behold the reward of the wicked. बाइबल कहती तू अपनी आंखों से दुष्टों के प्रतिफल को देखने He पाएगा। shall call upon me, और वो मेरा दास जब मुझे पुकारेगा I will deliver him. मैं उसे छुड़ा लूंगा। With long life will I satisfy him. लंबी आयु से मैं उसे तृप्त करूंगा Show him my salvation. और अपने उद्धार को उसे दिखाऊंगा। You see, देखिए God is in the business of delivering people. परमेश्वर आज भी लोगों को छुटकारा देने के कार्य में लगा हुआ है। So David is writing his psalm and saying, दाऊद अपने भजन को लिखते हुए बोलता है, he's saying, I will bless the Lord वो at कहता all है times. मैं हर समय परमेश्वर को धन्य कहूंगा। Amen. आमेन। You know the background of what he has gone through. आपको मालूम है उस पृष्ठभूमि के बारे में जिससे वो गुजरा। Now he's escaped the hands of Achish. अब वो आकीश राजा के हाथ से तो बच निकला। You find him again going into Philistine territory in chapter 27 of 1 Samuel. आप फिर से पहला शमूएल और उसके 21 अध्याय में फिर से फलिस्तियों के क्षेत्र में जाते हुए देखते हैं। But this time लेकिन इस बार he's not gone alone. वो अकेला नहीं गया है। He's got 400 men with him. उसके साथ 400 लोग भी हैं। He's got his family with him. उसके साथ उसका परिवार भी है। He's got his people with him. उसके साथ उसके अपने लोग भी हैं। Listen, my friends,
मेरे बात को सुने A दोस्तों, man, when he goes through these troubles, जब कभी भी आदमी ऐसे संकटों के दौर से गुजरता है, he will understand वो समझता है what others are going through. कि दूसरे किस दर्द से गुजरते हैं। When he had gone to this place called the cave of Adullam, और अब्दुल्लाम के उस गुफा में पहुंचने के बाद में people heard he's there. लोगों के पता चला कि दाऊद इस गुफा में छुपा है। His kindred came to him, his mother and father. तब उसके घर के लोग, परिवार और कुल के लोग उससे मिलने वहां पहुंचे। And everyone that was in distress, और हर एक ऐसा आदमी भी वहां आया जो हताशा में था। everyone who was in debt, हर एक आदमी जो कर्जा जिसके ऊपर था वो भी दाऊद के शरण में आ गया। everyone who was discontented, हर एक वैसा आदमी जो उस समय के राज्य से असंतुष्ट था वो भी आया। God wants us परमेश्वर चाहता है to come to him. कि हम मुड़कर उसके पास आएं। Jesus said, "Come unto me, यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, all you that labor and are heavy laden, हर एक परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, I will give you rest." मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Are you distressed? क्या आज आप निराश हैं? Are you distressed? क्या आप हताशा में हैं? Are you discontent? क्या आप असंतुष्ट हैं? Are you in debt? क्या आप कर्ज में हैं? Are you under this bondage? क्या आप किसी बंधन के नीचे हैं And you seek deliverance? और आप इन सब से छुटकारा चाहते हैं? Come to Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ He will deliver you. और वो आपको छुटकारा देगा। Amen. आमेन। So he has a gathering now. उसके पास में ऐसा इकट्ठा होने वाली भीड़ आई Of 400 discouraged, disillusioned people. 400 ऐसे लोग जो हताश थे, निराश थे, जिनके पास में दिशा नहीं थी। After some time you find them, they have become warriors. और आप पाएंगे कुछ समय के बाद में वो कैसे योद्धा में तब्दील हो गए। David became their captain. दाऊद उनका कप्तान बन गया। He again goes off to the land of Moab. और फिर से जाता है मोआब के देश में, A place called Mizpah. मिस्पा नाम के जगह में जाता है। This is not also a friendly country to Israel. और इज़राइल से अच्छा संबंध रखने वाला जगह ये भी नहीं था। And he's staying there with his parents and mother and father. वहां पर दाऊद अपने परिवार के लोगों के साथ में, माता पिता के साथ रहता है। But he knows his life is not safe there. परंतु उसे मालूम है यहाँ पर भी मेरा जीवन सुरक्षित नहीं है। So he hands over his father and mother to that king and says, तो वो अपने माता पिता को सौंपता उस राजा के हाथ में और बोलता है, "Let my mother and father be with you मेरे माता पिता को यहाँ पर तेरे संग रहने दे, till I know what God will do for me." जब तक कि मैं ये ना जान लूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करने वाला है। Again he's on the run. फिर से वो निकल पड़ा एक और दौड़ने के लिए। What a man. कैसा आदमी, His heart is still with God. अभी भी उसका मन तो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। Wherever he went, जहां भी जाता था God was with him. परमेश्वर उसके साथ था। If you break down this psalm, यदि आप इस भजन को अलग अलग करके पढ़ें, it is a psalm of deliverance with praise, prayer, protection and promise. ये छुटकारे का भजन है जिसमें प्रार्थना है, स्तुति है और सुरक्षा की प्रार्थना है। He says, वो कहता है, he praises God for his goodness. प्रभु को स्तुति करता है उसकी भलाई के लिए, And he says, और कहता है, "Oh, magnify the Lord with me. ओ मेरे साथ यहोवा को धन्य कहो, Let us exalt his name together." और आओ हम मिलकर यहोवा की बड़ाई करें। Fourth verse he says, चौथी आयत में बोलता, "I sought the Lord मैं यहोवा के पास गया and he heard me, और उसने मेरी सुन ली delivered me from all my fears." और मेरे सारे भय से मुझे आजाद किया। Hallelujah. हालेलुया। He sought the Lord in prayer. उसने प्रार्थना में परमेश्वर को ढूंढा। You know, आप जानते, the day you call, जिस दिन आप पुकारते हैं, the day you seek God, जिस दिन आप परमेश्वर को ढूंढते हैं, you will find him faithful. आप पाएंगे वो विश्वास योग्य है। He heard me उसने मेरी सुन ली
It might not be in a very systematic prayer, हो सकता है उसकी प्रार्थना बहुत ही व्यवस्थित प्रार्थना नहीं थी, because he was so afraid of Achish that time क्योंकि वो उस समय आकीश राजा से इतना डरा हुआ था that he changed his behavior. कि उसने डर के मारे अपने व्यवहार को अजीबोगरीब कर दिया। But the Lord heard him लेकिन परमेश्वर ने इस दास की प्रार्थना सुन ली and says, और कहता है, delivered me from all my fears. दाऊद कहता है, उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। Are you going through a time of fear? क्या आज आप किसी डर के, भय के समय से गुजर रहे हैं? Of people, लोगों का डर, your enemies, आपके शत्रुओं का भय, or things? या कोई ऐसी वस्तु का डर? The scripture says, पवित्र शास्त्र बोलती है, encourages us हमें उत्साहित करती to है seek God. कि ऐसे समय में परमेश्वर को ढूंढ। Sometimes you and I need to pray that till there is a breakthrough. कभी कभी हमें प्रार्थना बंद तब तक नहीं करना चाहिए जब तक हमें उससे छुटकारा ना मिल जाए। Sometimes God will wake you up at night and you need to pray through. कभी कभी रात्रि के समय परमेश्वर आपको जगा देता है कि आप प्रार्थना करें, And when you pray through, और जब आप प्रार्थना वो में बने रहते हैं, suddenly there is a deliverance. आप पाएंगे कि एकाएक वहां पर छुटकारा आता है, And you know for sure your prayer is answered. और आप तुरंत जान जाते हैं कि आपकी प्रार्थना का जवाब आ चुका है। Amen. आमेन। His psalm is full of praise. ये भजन पूरा स्तुति से भरा है। It's a prayer, a psalm of praise. ये Prayer. स्तुति का प्रार्थना है। And then he goes on to say, तब वो आगे बोलता है the angel of the Lord, 7th verse, 7वीं आयत में, यहोवा का दूत encampeth round about them that fear him and delivereth them. उसके डरवैयों के चारों ओर छावनी किए हुए उनको बचाता है। What brought you out, David, from that place? दाऊद कौन था वो जिसने तुझको उस जगह से बचा कर निकाल दिया? Nothing, it's a divine intervention. ओ कुछ नहीं, केवल स्वर्गीय I was हस्तक्षेप। surrounded by my enemies. मैं तो चारों तरफ दुश्मनों से घिरा खड़ा I was था। in the midst of them. मैं तो उन दुश्मनों के बीच खड़ा था। I was in the enemy territory. मैं तो दुश्मन के परिक्षेत्र के अंदर था। How deliverance came. कैसे छुटकारा आ गया? The angel of the Lord परमेश्वर यहोवा का दूत was encamping round about me. ओ मेरे Hallelujah. चारों ओर छावनी डाल के था। Hallelujah. Hallelujah. You are safe. You are safe. आप सुरक्षित है, Because God has charged his angels concerning you क्योंकि परमेश्वर ने अपने दूतों को तेरे निमित्त हुक्म दिया है, to surround you, to keep you. तुझे घेर कर रखने, तेरी रक्षा करने का। When you are asleep, he's still encamping around you. जब तू सो भी रहा है, वो दूत तेरे चारों ओर छावनी किए He's बैठा है। around you, around your children, वो तेरे और तेरे बच्चों के चारों ओर छावनी किए हुए around है। all that you have and possess. और जो कुछ भी तेरे पास है उन सब के चारों ओर है। We say the Lord is my shepherd. हम कहते यहोवा मेरा चरवाहा I shall है, not want. मुझे कोई घटी ना होगी। And it's a responsibility of the shepherd to look after his sheep. और ये चरवाहे की जवाबदारी है कि वो भेड़ों की रखवाली करे। We have a good shepherd, हमारे पास में तो एक बहुत अच्छा चरवाहा the है, Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह। Hallelujah. हालेलुया। Amen. His rod and his staff comforts me. वो उसके सोटे और उसके लाठी से मुझे शांति मिलती है। Amen. आमेन। This psalm ये भजन is a psalm of protection also. सुरक्षा का भी भजन है। He said, the angel of the Lord encamps round about them that fear him and delivereth them. कहता है यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। Amen. आमेन। They might have sought some plan to trap him. उन्होंने कोई योजना बनाई होगी किसी तरह उसको फंसा ले। The net is broken and I have escaped. वो लिखा है जाल फट गया और मैं बच निकला। Deliverance came छुटकारा आ गया through God's intervention. परमेश्वर के हस्तक्षेप से आया। Hallelujah. हालेलुया। And then और फिर से there is a promise वहां पर एक वायदा भी है। in the 19th verse. 19 आयत में, Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। You say, आप कहते हैं, Lord, I walked an honest life. परमेश्वर मैंने एक ईमानदारी का जीवन जिया है, I have not sought to harm anybody. मैंने किसी को भी
हानि पहुंचाने का नहीं सोचा है, But why all these things are coming upon me? परंतु क्यों ये सारी विपत्ति मेरे जीवन के ऊपर आ रही है? The scripture is saying, वचन कहता है many are the afflictions बहुत सी विपत्तियां of the righteous, धर्मियों पर पड़ती तो है, but the Lord परंतु यहोवा delivereth him out of them all. उसको उन सब से मुक्त करता है। Amen. आमेन। One by one, deliverance. एक एक करके छुटकारा आते जाता है। You'll find yourself totally free. तू अपने आप को संपूर्ण आजाद पाएगा But God is through with you. जब परमेश्वर तेरे जीवन में काम को कर ले। Don't live a life of self-condemnation. वो स्वयं को दोषी देने वाला जीवन मत जी। Just because something has happened to you. केवल इसलिए कि कोई घटना तेरे जीवन में घट गई। There is no condemnation to them who are in Christ. प्रभु यीशु मसीह में जो हैं उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। Devil is an accuser of the brethren. शैतान तो भाइयों पर दोष लगाने वाला है, So he might twist and turn situations to accuse you. ताकि वो परिस्थितियों को मोड़े बदले तेरे विरुद्ध लाए। But Bible says, किंतु बाइबल क्या बोलती है? many are the afflictions of the righteous, धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, but the Lord delivereth him out of them all. परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। 22nd verse. 22 आयत में लिखा है, The Lord redeemeth the soul of his servants, and none of them that trust in him shall be desolate. यहोवा अपने दोस्त दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। He redeemeth the soul वो तो बचा लेता है of his servants. अपने दासों का प्राण। There he is sitting down and remembering how he escaped. दाऊद बैठकर सोच रहा होगा कैसा वो उस जंजाल से बच निकला, All the situations he's gone through. जो परिस्थितियां से वो अभी गुजरा था। And he says, अब बोलता है the Lord redeems the soul of his servants. परमेश्वर यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, None of them that trust in him shall be desolate. और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। Amen. हालेलुया। Not only this, ना केवल इतना, he's promised to shelter you. उसने तुझ पर शरण का भी वायदा किया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। You might be going through that situation. हो सकता आप जीवन की ऐसी कोई परिस्थिति से गुजर रहे हैं, And he has a testimony also in this psalm. इस भजन में उसके पास एक गवाही भी है। He says, I sought the Lord. वो कहता है मैंने, 4th verse. 4th आयत में बोलता, मैं यहोवा के पास गया And he heard me. और उसने मेरी सुन ली, Delivered me out of all my fears. और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। 6th verse. 6वीं आयत, This poor man cried unto the Lord, and the Lord heard him, saved him out of all his troubles. इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। Amen. आमेन। God wants to set us free. परमेश्वर हमें आजाद करना चाहता है। You shall know the truth, तो सत्य को तुम जानोगे and the truth will set you free. और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। The Bible says, बाइबल बोलती है that he who serves sin is a servant of sin. जो पाप की सेवा करता है वो पाप का गुलाम है, But whom the Son of Man sets free किंतु परमेश्वर का पुत्र जिसे स्वतंत्र कर दे shall be free indeed. वो स्वतंत्र है। Amen. आमेन। Deliverance will come. छुटकारा आएगा। God knows how to deliver his people. परमेश्वर जानता है कैसे अपने लोगों को छुटकारा दे। 2 Peter 2nd chapter, दूसरा पत्रस और उसका दूसरा अध्याय 9th verse says, और उसकी 9 आयत बोलती है, The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptation and reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। The Lord knows how to deliver you. परमेश्वर जानता है तुझको परीक्षा में से कैसे निकाले। Even again in 2 Peter 2nd chapter 7th verse says, और फिर इसी अध्याय के 7वीं आयत में वो बोलता है, and delivered just Lot vexed with the filthy conversation of the wicked.
और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। See, God wants to deliver us. परमेश्वर हमें छुटकारा देना चाहता है। If there is one man यदि वहां पर एक आदमी भी हो whose soul is desiring and calling out to God for deliverance, जिसका हृदय परमेश्वर को छुटकारे के लिए पुकार रहा हो। Lord was vexed with the filthy conversation of the wicked. परमेश्वर दुष्टों के, उन अधर्मियों के उस चाल चलन से दुखित था। Lot was in Sodom and Gomorrah, और लूत सुदोम और गुमोरा नामक उस स्थान में रहता था, sinful place. एक बहुत पाप से भरा हुआ। He was vexed with the filthy conversation of the wicked. और लिखा है कि वो उन लोगों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। God delivered him. परमेश्वर ने उस लूत को निकाल दिया। And he calls him over here in this chapter. और इस अध्याय में उसको पुकारता है। He delivered just Lot. लिखा है परमेश्वर ने धर्मी लूत को छुटकारा दिया। Hallelujah. हालेलुया। He couldn't judge that city. वो उस देश का, उस नगर का न्याय नहीं कर पा रहा था Till Lot was there. जब तक वो धर्मी लूत उस नगर के अंदर रह रहा था। And the angel said, तब स्वर्गदूत ने लूत से कहा, hurry up, you must go. तुझ जल्दी इस नगर से बाहर निकल, We can't do anything क्योंकि हम इस नगर के ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे as long as you are there. जब तक तू यहाँ पर रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। You are the salt of the earth. तुम जगत के नमक You हो, are the light of this world. तुम इस जगत की ज्योति हो। Because of you, God is extending his hand. और तुम्हारे ही कारण परमेश्वर इस जगत पर अपनी दंड से हाथ को रोक रखा है। One time will come, किंतु एक समय आएगा, this whole deliverance will be through. ये सारा छुटकारे का कार्य पूरा हो When जाएगा। the church goes away, जब कलीसिया यहाँ से कूच कर जाएगी, the salt and light is gone. जब ज्योति चला जाएगा और जब नमक भी यहाँ से हट जाएगा, The whole earth groans for deliverance. और पूरी पृथ्वी अपने छुटकारे के लिए मानो कराहेगी। They are looking out for the manifestations of the sons of God. और वे परमेश्वर के कार्य के प्रगटीकरण की राह देखेगी। That is, they are looking out for deliverance. वही पृथ्वी छुटकारे की बाट जोती है। Amen. आमेन। The Lion of Judah यहूदा का सिंह shall break every chain, हर एक जंजीरों को तोड़ेगा give you the victory और आपको वो विजय देगा। again and again. वो बार बार देगा। Those chains that hold you वो जंजीर जो आपको किसी रीति से बांध कर will रखी, hold you no more. अब वो आपको रोक नहीं The पाएगी। demons that oppressed you, वो दुष्ट आत्मा जिसने आज तक आपको परेशान they किया will है, oppress you no more. वो तुझे आगे को परेशान नहीं करेगा। The deliverance in the name of Jesus Christ. छुटकारा तुझे यीशु मसीह के नाम में मिलने When you पाएगा। go preach and say, जब तू जाए प्रचार करके the कहे, kingdom of God has come. परमेश्वर का राज जाए, Heal the sick, बीमारों को चंगा cast करो, out demons, दुष्ट आत्माओं को set the निकालो, people free. लोगों को आजाद करो। Hallelujah. Hallelujah. There is power in the name of the Lord वहां Jesus पर Christ. यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। You too will say like Psalmist David आप said, भी दाऊद जो भजन को लिखा उसके समान बोलने come पाएंगे। rejoice with me and sing with me. आओ मेरे साथ आनंदित हो, मेरे साथ गीत गाओ, For I sought the Lord and he heard me. क्योंकि मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। Delivered me from all my fears. मेरे सारे भय से मुझको निर्भय कर दिया। You and I have to believe God. मुझको और आपको परमेश्वर पर विश्वास You करने got की to believe जरूरत for है। your deliverance. आपको अपने छुटकारे के लिए परमेश्वर पर भरोसा करने You की must know जरूरत that है। God doesn't lie. आपको ये जान लेना चाहिए कि ये परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। What he said, he will do it. जो उसने कहा है उसे वो पूरा करेगा। Amen. आमेन। Trust his word. उसके कहे हुए वचन पर भरोसा कर ले। You'll say, what must I do? आप पूछते हैं मैं उसके लिए क्या करूं? Call on the name of the Lord. अभी प्रभु के नाम को पुकार। They who call on the name of the Lord shall be delivered. वे जो यहोवा के नाम को पुकारते छुटकारा पाएंगे। Therefore the redeemed of the Lord shall return. और इसलिए यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर आएंगे Come with singing unto Zion. और गाते हुए सिय्योन में आएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Amen. That's what God is able to do for you. परमेश्वर ऐसा आपके लिए कर सकता है। David rejoiced
दाऊद तो बहुत ही आनंदित हुआ in his deliverance. उसके छुटकारे को सोचकर। When you have time, read that psalm again. जब आप समय हो आप फिर से इस भजन को दोबारा Rather, पढ़िए, take out time and read it again. बल्कि आप समय निकाल कर इस भजन को फिर Now पढ़िए। we understand अब हम समझते हैं from all the situation he's gone through. वो आदमी कैसी कैसी परिस्थितियों से होकर गुजरा। He goes on to say, वो आगे बोलता है, many are the afflictions of the righteous, वो धर्मियों के ऊपर बहुत सी विपत्तियां आती तो है, but the Lord, परंतु परमेश्वर hallelujah, यहोवा hallelujah, Hallelujah. delivereth him out of them all. उसे उन सब से छुटकारा देता है। Multiple bondages, बहुत से तरह तरह के विभिन्न प्रकार के बंधुआई, bondage of sin, पाप के बंधुआई, bondage of sickness, बीमारी का बंधन, bondage of death and poverty. मौत गरीबी का बंधन। He delivers you परमेश्वर तुझे उन सब से निकालता है, from them all. उन सब से, Whom the Son of Man sets free क्योंकि जिसे परमेश्वर का पुत्र ने आजाद किया है shall be free indeed. वो निश्चित तौर से आजाद है। Out of Zion सियोन के भीतर से shall come a deliverer. एक छुटकारा देने वाला निकलेगा, He's delivered his people. और वो अपने लोगों को बचाएगा, लिखा था। Hallelujah. हालेलुया। He's come और वो छुटकारा देने वाला आ गया। through his life, death and resurrection. उसके जीवन, उसकी मौत और मृत्यु से जिंदा होने के द्वारा Christ has given us victory. प्रभु यीशु मसीह ने हमें विजय दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Thank you, Lord. Heavenly Father, in the precious name of Jesus, हे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के तुल्य नाम में we are looking to you today आज के दिन हम तेरी ओर देखते प्रभु, and we pray for these precious lives और इन बहुमूल्य जिंदगियों के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं, who are struggling with their life, oh God, जो अपने जीवन को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, because they have come into a place of bondage. क्योंकि वे एक बंधन के स्थान में आए हैं। They too are crying and saying, वे भी अपने मन में पुकार कर तुझसे बोलते हैं, who will deliver me? कौन मुझे आजाद करेगा? Yes, Lord, हाँ प्रभु, we know that you are the one who delivers us all. हम जानते हैं वो छुटकारा देने वाला तू है। So we pray today, इसलिए आज के दिन तुझसे प्रार्थना, even as we pray right now, जैसे इस समय अभी हम प्रार्थना कर there रहे will हैं, be deliverance from sin and Satan, वहां पर पाप से और शैतान से लोगों को आजादी मिले, from sickness, बीमारी से, from every evil influence of the enemy, हर एक दुश्मन की ओर से लाए गए बुरे प्रभाव से, every kind of habit that binds them. हर एक ऐसी आदतों से जो उनको बांधी है अब तक, Be free वे आजाद हो जाएं in the mighty name of Jesus. यीशु मसीह के सामर्थी That नाम में। sickness to go away, वो बीमारी वहां से चले जाए, demons run, वो दुष्ट आत्मा वहां से निकल जाए, be healed in Jesus' mighty name. यीशु के नाम से तुम चंगे हो जाओ, Be thou made whole. तू चंगा हो जा। Bless your people, O God, प्रभु अपने लोगों को आशीष दे, in Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते, Amen. आमेन, Amen. आमेन, Amen. 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 आमेन। Thank you all for your prayers for us. आपकी प्रार्थनाएं जो आप हमारे लिए करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, We thank you for supporting us also. और आर्थिक तौर से Financially. हमारी सहयोग करने के लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। God bless you all. प्रभु आप सबों को उसके लिए आशीष दे। We are online because the churches are closed. और चूंकि कलीसियाएं अभी बंद हैं, हम ऑनलाइन ही इस प्रकार से आपसे रूबरू हो रहे हैं, We are praying that it will open soon. और यही हमारी प्रार्थना है कि प्रभु का भवन फिर से एक बार खुलने पाए, We can gather together and worship Him. ताकि लोग एकत्रित होकर उसकी आराधना मिलकर कर सके। So we sing a chorus, so we put our offering. इस समय हम एक कोरस को गा लेंगे और आप अपनी भेंटों को अपने स्थान में एकत्रित कर सकते हैं। There really ought to be a sigh upon my heart. Don't judge yet, there's an unfinished part. I will be perfect just according to His plan, fashioned by the Master's loving hand.
He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. Shall we pray for the offering? आइए भेंट के लिए हम प्रार्थना करें। Lord, we pray that you bless those who have given to your kingdom. प्रभु हम प्रार्थना करते तू अपने लोगों को आशीष दे जिन्होंने तेरे राज के प्रति दिया है। Those who could not give, bless them too. प्रभु जो देने में असमर्थ थे उन्हें भी आशीष देना। We all together might love you and serve you all the days of our life. तेरे सारे लोग हम मिलकर जीवन भर तेरी सेवा कर सके। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Almighty, the blessed communion of the Holy Spirit rest and abide with us and all the saints all around this world, now and until Jesus comes back again. आमीन। Amen. 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 God bless you all.